गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। In a previous video, we have discussed about the basic concept, the basic idea behind a AC generator. Okay, now let's take AC generator in detail and take the things separately, that basic principle, construction, etc, 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 etc. Okay, we will be taking all the things separately now. Fine, chalo. First of all, what's the basic principle of an AC generator? See, अगर हम बेसिक प्रिंसिपल को प्रिसाइजली कहें तो देन हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि द बेसिक प्रिंसिपल फॉर एसी जनरेटर इज electromagnetic induction. That is, phenomena of electromagnetic induction is responsible for this. And if we want to write this particular thing in detail, then we will be writing the basic principle as: if flux associated with any coil changes with time, then an induced EMF appear across the ends of the coil. It's okay? So like this you will be writing basic principle if you are asked in exam. Okay, if you are asked to write write the basic principle of an AC generator, you will be writing it like this, complete with mathematical relation. It's okay. Now, construction part. So before writing construction, let's draw the detailed diagram. Okay, now see, सबसे पहले we need to have a magnetic field, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल पीसेस, ठीक है, प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द स्पेस बिटवीन द पोल्स। इट्स ओके। देन अ रेक्टेंगुलर लैमिनेटेड कोर, ओके, rectangular coil having embedded laminated core. Fine. Or n number of turns are wounded on that particular coil. Rectangular coil having n number of turns, and this coil is free to rotate around the axis of rotation. Okay, axis of rotation x prime. It's okay. And having embedded a laminated core along the axis of rotation, made of soft iron. Now, when this coil will be rotated around this axis with angular velocity omega, as I told you, okay, in previous video we have discussed this particular thing now. So as this particular thing will be rotated across the ends of the these are two ends, one end, okay, another end, okay, across these two ends क्या होगा? Across these two ends an EMF will appear. अब उस EMF को सिस्टम से बाहर लेके आना है। How to? कैसे? देखो, यहां पे हम क्या करते हैं, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इसके ऊपर कंडक्टिंग रिंग्स वेल्ड कर देते हैं इन सच अ वे कि इन रिंग्स का जो सेंटर है वो रॉड के ऊपर रहे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर रहे, ठीक है, ओके। और एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ इनको वेल्ड कर दिया जाता है, फाइन, रिंग्स को, ठीक, के ये एक्सिस के साथ साथ ही रोटेट करते हैं। दे आर एबल टू रोटेट विद एक्सिस। इट्स ओके। टू रिंग्स, दीज आर कॉल्ड एज स्लिप रिंग्स, R1 and R2. It's okay. R1 and R2 slip rings are fixed with the axis in such a way कि दोनों वायर्स के एंड एक R1 के साथ फिक्स कर दिया जाता है और एक R2 के साथ। They are touching rings. ठीक, अब इसके बाद जो आपका EMF इंड्यूस हुआ था वो R1 R2 रिंग्स के पास आ गया, ठीक, जो कॉन्टैक्ट हम इसका रॉड के साथ बनाते हैं वो परफेक्टली इंसुलेटेड होता है। उसके बाद यहां पे लगाते हैं हम ब्रशेस, ये बॉडी में फिक्स होते हैं, फाइन, ब्रशेस, ये ब्रशेस है अपने, ब्रश B1 एंड B2। अब ये क्या कर रहे हैं, ये सॉफ्ट डेलिकेट टच देते हैं, ये रिंग को डेलिकेट टच देते हैं। ब्रशेस हैं मेड ऑफ कंडक्टिंग ब्रिसल्स,
ठीक है, कंडक्टिंग ब्रिस्टल से बने हुए हैं, बॉडी में फिक्स्ड है। तो ये क्या कर रहे हैं, इस रोटेटिंग रिंग से कंडक्टिव कांटेक्ट बना के बॉडी के अंदर बाहर, अब यहां पे फिक्स प्लेस के ऊपर अपने पास एसी आ गया, ईएमएफ आ गया। नाउ क्या करते हैं, ये दो एंड्स, ये लो बाहर वायर लगाई एंड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है एसी ईएमएफ इन एंड्स के अक्रॉस हमें मिल जाता है, इनके अक्रॉस। इट्स ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम। तो कंस्ट्रक्शन अब लिखते हैं इसकी। नाउ N and S pole pieces, it's okay, pole pieces, fine. Now pole pieces के बाद क्या है, this armature coil containing n number of turns, having wounded n number of turns, ठीक है, free to rotate around axis of rotation x prime. Okay, now rectangular coil, n number of turns, free to rotate around x axis, x prime, this is axis of rotation, and this is laminated core. Laminated core किस तरह से इसको प्लेस किया है, along the axis of rotation. This core is laminated. Core laminated, made of soft iron, क्योंकि soft iron का permeability जो होता है, okay, that is very good, is placed inside the coil along the axis of rotation of the coil. It's okay. Now after that we have rings, slip rings कहते हैं इनको, R1 and R2, okay, touching both the ends of the rectangular coil. Now these rings R1 and R2 ये फिक्स किए गए हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि एक रॉड है, टू मूव विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज रॉड, ओके। और इनके दोनों एंड्स जो हैं, अपनी कॉइल के दोनों एंड्स ऑफ द कॉइल, ये कॉइल के दोनों एंड रिंग्स के साथ अटैच कर दिए गए, ठीक, ओके। नाउ जब ये रोटेट करेगा तो ईएमएफ इसके क्रॉस आ जाएगा, तो फिर कंडक्टिंग ब्रशेस को B1 एंड B2 को यूज करके हम उसको सिस्टम से बाहर निकाल लेंगे। तो ब्रशेस B1 एंड B2 नाउ ब्रशेस B1 एंड B2 हैविंग कंडक्टिंग ब्रिसल्स हैं उनके, ताकि रिंग से सप्लाई बाहर निकाल सकें, एंड हैंडल मेड ऑफ कार्बन, उनका जो हैंडल है, जैसे ये पेन है, यहां पे ब्रिसल्स लगे हुए हैं, और ये हैंडल मेड ऑफ कार्बन, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बेसिकली बनाना है। ये जो हैंडल है, इसका एंड इज फिक्स विद द बॉडी, और जेंटली ये जो ब्रिसल्स हैं इसके, दे आर प्लेस्ड ऑन द रिंग को टच कर रहे हैं आराम से, फिटेड टू द बॉडी ऑफ जनरेटर, handle made of carbon fitted to body of the generator and gently touching the rings. It's clear? अब हमारा जो सप्लाई है, जो EMF जनरेट हुआ वो सिस्टम से बाहर आ गया, and like that we are able to generate AC. This is all about the construction. Now theory and working. Now theory and working. Okay, आराम से इसका डायग्राम देखेंगे और सिचुएशन को एनालाइज करेंगे कि किस तरह से EMF जनरेट हो रही है बाय विद द चेंज ऑफ फ्लक्स, ओके। लेट अस सी इंड्यूस्ड EMF अपीयर्स विद द चेंजिंग फ्लक्स, टाइम वेरिंग फ्लक्स, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड ये कॉइल इसके बीच में रोटेट कर रहा है। टॉप व्यू ऑलरेडी बता चुका हूं ना, ठीक, तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस, टॉप व्यू है ये। अब when this is rotating, अगर इसको फ्रंट से देखें तो the things are like this. This is the front view. अब this is area vector at zero time. At zero time, okay, the coil is perpendicular. ये जो coil है हमारा, this is location number 1. तो अगर coil हमारा यहां पे है number 1 लोकेशन पे like this, तो इसका जो area vector होगा that will be along this. ठीक है? Now this is rotated with angular velocity omega like this. Angular velocity omega like this and reaches here at time t or after time t. तो हमारा एरिया वेक्टर रोटेट करके यहां पहुंच जाएगा, एंगल थीटा इज ट्रेवल्ड इन टाइम t, then this theta traveled will be angular velocity into time. Okay, at time t the flux associated with this coil which is having n turns, total flux associated with one turn will be b dot a, that is ba cos theta. And because that is having n number of turns, तो n b a cos theta, theta का वैल्यू ओमेगा टी प्लेस किया,
तो flux we are having NBA cos omega t. Now differentiating this particular thing, because flux is changing with time, okay, differentiating this with respect to time, d phi by dt. तो ये जो phi है इसको with respect to t differentiate किया, NBA cos omega t. This is equal to, fine. तो we are getting, differentiating this, we are getting E is equal to NBA omega sin of omega t. नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है. Now this NBA omega ये हमें क्या दे रहा है? This is giving us the peak value of EMF. Variation of EMF is sine type variation. It means half positive and another half negative. Like that, the EMF is toggling between positive and negative halves, making an AC current. And like that, an EMF, an AC EMF is generated. तो इस तरह से हमें AC करंट मिल रहा है. Now, अब समझते हैं इस चीज को कि हाफ साइकिल के बाद, हाफ रोटेशन के बाद करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है. एसी में वही होता है ना, देखो, दिस इज द थिंग. व्हाट इज हैपनिंग? फॉर हाफ साइकिल द करंट इज पॉजिटिव एंड फॉर हाफ साइकिल द करंट इज नेगेटिव. मतलब हर हाफ के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग. ठीक है. अब देखते हैं हमारे एसी जनरेटर में जो हमने बनाया है उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर रहा है या नहीं. ठीक. तो इस डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए विच रूल वी विल बी यूजिंग, जस्ट एक बार दिमाग के अंदर लेके आओ, जस्ट थिंक, उसके बाद बताता हूं फिर. नाउ सी, ये दो डायग्राम्स मैंने बनाई है. ओके, दिस इज पोजीशन ऑफ द कॉइल एट सम टाइम एंड उसके हाफ ट्रेवल के बाद सिचुएशन ये है. मतलब पी यू साइड जो है, पी क्यू लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर यहां पे है पी यू, ओके, देन हाफ साइकिल के बाद हमारा पी यू यहां पे आ जाएगा. इट्स ओके. एंड क्यू आर जो यहां पे है वो घूम के इधर आ जाएगा. क्यू आर. अब हमें चेक करना है अबाउट डायरेक्शन. नाउ इसका डायरेक्शन चेक करने के लिए वी विल बी यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अब ध्यान देना, दिस कॉइल इज रोटेटिंग लाइक दिस. ये साइड ऊपर आ रहा है, इसका वेलोसिटी इज आउटसाइड द पेपर और इसका वेलोसिटी इज इनसाइड पेपर. पी यू का वेलोसिटी आउटसाइड द पेपर. ठीक है. पी यू का आउट, नॉर्मली आउट, ऐसे घूम रहा है ना ये, लाइक दिस. तो नॉर्मली आउट आएगा एट एनी टाइम, और यहां पे जो भी आएगा परपेंडिकुलरली इन, नॉर्मली इन. अब फ्लेमिंग रूल व्हेन यू विल बी अप्लाइंग, तब सिचुएशन क्या है वो देखो. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, कंडक्टर अपना ये रहा यू, पी यू या फिर यूपी, और मोशन वेलोसिटी उसका जो है अप है. फाइन. सी नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सबसे पहले चेक कर लेना है कि राइट हैंड ही है. यस, दिस इज माय राइट हैंड. थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर. ओके. ए बी सी. A acceleration, that is motion. B magnetic field. C current. Motion is perpendicularly out, perpendicularly out. B magnetic field. C देखो ऐसे कर दिया हमने इसको इजी के लिए. मोशन perpendicularly out. मैं PU फेस की बात कर रहा हूं. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस. तो उसमें करंट कैसे होगा? दिस फिंगर विल बी प्रोवाइडिंग यू करंट. मोशन, magnetic field, current should be like this, current should be like this in the face, in the considered face, that is current should be from U to P along this finger. U to P, the current will be, mean when this particular side is passing from this through this particular location, तो current उसमें U to P होता है. ठीक. What about जो ये QR साइड जब यहां से पास कर रहा है, इसका वेलोसिटी इज इनसाइड. अगेन यूजिंग फ्लेमिंग रूल. मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट. मोशन इज डाउन साइड. ये देखो, ये डाउन साइड रहा, ये डाउन साइड. मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड दिस वे. ओके. करंट डाउन साइड दिस वे, ऐसे. ठीक है ना. तो क्यू आर पे जो आएगा उसका करंट विल बी डाउन साइड लाइक दिस. इट्स ओके. ठीक है. नाउ आफ्टर हाफ साइकिल जो हमारा पी यू फेस है वो यहां पे आ जाएगा, यहां पे. ठीक. ओके.
ठीक, एंड क्यू आर फेस घूमने के बाद यहां पे आ जाएगा। अब जो यहां पे वेलोसिटी है क्यू आर का वेलोसिटी व्हेन इट विल बी हियर कैसे होगा, इट विल बी आउट होगा ना, क्यू आर का वेलोसिटी आउट और पी यू का होगा इन। ठीक, तो लेट अस अप्लाई नाउ। क्यू आर मोशन, मैग्नेटिक फील्ड मोशन बाहर, मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, करंट दिस वे। क्यू आर की बात कर रहा हूं, क्यू आर का मोशन परपेंडिकुलरली आउट है, इट इज कमिंग आउट लाइक दिस, ऐसे घूम के आएगा ना ऊपर। तो मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड देन करंट, मोशन इज परपेंडिकुलरली आउट फ्रॉम पेज, मैग्नेटिक फील्ड दिस वे एंड करंट ये आ गया। ठीक, तो करंट थ्रू क्यू आर इज दिस, ओके, एंड सिमिलरली करंट थ्रू पी यू विल बी लाइक दिस। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो यू टू पी करंट था इस आर्म में, और आफ्टर हाफ रोटेशन करंट हो गया पी टू यू, तो करंट हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन आफ्टर हाफ रोटेशन, मतलब हाफ टाइम पॉजिटिव, हाफ टाइम नेगेटिव। सो क्या बन रहा है यहां पे, विच टाइप ऑफ करंट, हमें जो करंट मिल रहा है इस सिचुएशन में, द करंट इज लाइक दैट के हाफ साइकिल के बाद इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। हाफ साइकिल के लिए वो एक डायरेक्शन में है, सपोज पॉजिटिव, तो फॉर अनदर हाफ दैट इज इन अदर डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव। तो एसी बन गया कि नहीं, एसी करंट वही तो होता है विच अल्टरनेटली टॉगल्स बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। So hope you have understood the things in a better way. Fine. If you find any kind of confusion, कोई भी confusion हो, okay, तो let me know about. Fine. Okay बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन दोनों वीडियोस को वॉच करना, okay, to get the proper idea. ठीक है, to understand the things better way. Fine. So with this hope that you have understood the things, okay, and you will be doing it in a sincere way, sincerely you will be doing it, okay. I am closing this. Fine, thank you, have a nice time.